ओर आएंगे हम प्रार्थना करेंगे। Father God, we thank you that you brought us here into this place for purpose. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने आज हमें यहाँ पे लाया है एक उद्देश्य से। We want to keep our mind on you. हमें हमारा दिमाग आपके ऊपर रखना है। We don't want to keep our mind on so many other things that are there troubling us. हम नहीं चाहते कि हम हमारा दिमाग सारे हमारी समस्याओं के ऊपर लेके जाएं। We want Lord to be like Mary who came at the feet of Jesus and was listening to her. हमें मरियम की जैसे बनना है प्रभु, जो आपके चरणों में बैठ के आपके शब्दों को सुन रही थी। We will hear what you have to speak to our heart and each one of our hearts. हमें सुनना है प्रभु कि आज हम आपको हमारे हृदय से क्या बात करना है। Speak, Lord, your servant is listening. बोलिए प्रभु, आपके सेवक सुन रहे हैं। Fill us with your Holy Spirit. अपने पवित्र आत्मा से हमें भरे We can obey all that you have spoken to our hearts. ताकि हम सारे आपके आज्ञाओं का पालन कर सकें। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Today we will be having the sharing of the word. प्रभु का वचन के ऊपर आज हम लोग बोलेंगे। And after that we will be having dedication of 2 children. उसके बाद 2 बच्चों का समर्पित हम लोग आज करेंगे प्रभु की ओर, Then we will have fellowship. और उसके बाद संगति करेंगे। After I share, मैं बोलने के बाद Brother Bhadra, Brother Bharat Swami and Brother Vijay. सब शेयर करेंगे दूसरे भाई। So let's open the word of God to Colossians chapter 3. कोलोसियों चैप्टर 3 में जाएंगे। कोलोसियों चैप्टर 3। Verses 1 to 4. वाक्य 1 से 4। If you have been raised up with Christ, Jesus Christ, keep seeking the things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things that are there on this earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ also, who is our life, is revealed, then you also will be revealed with Him in glory. Ready? जो तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए हो और तुम्हारे जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। The Apostle Paul is telling us that we have been raised up with Jesus Christ. अपोस्तल पौल हमें बोल रहा है कि प्रभु यीशु के साथ हम भी जीवित की गए हैं। When we take the waters of baptism, we come out of the waters, we say that now I am not going to live for myself, and I am going to live for Jesus. जब लोग पानी का बपतिस्मा लेते हैं और पानी से बाहर आते हैं, तो उस समय लोग बोलते हैं कि आज से मैं खुद के लिए नहीं जीऊंगा, लेकिन प्रभु यीशु के लिए जीऊंगा। Earlier I used to live my selfish life, पहले मैं अपना स्वार्थी जीवन जीता था and I used to live for myself, और खुद के लिए जीता था and I was controlled by the devil. और शैतान के नियंत्रण में था। But now I am going to live for Jesus, लेकिन अभी से मैं प्रभु यीशु के लिए जीऊंगा and I am going to live like Jesus lived. और प्रभु यीशु के जैसे जीऊंगा। Now what should I do after having started my Christian life? मसीह जीवन शुरू करने के बाद मैं क्या करूं? I have to keep seeking the things that are above. मुझे उन्हीं चीजों की खोज करना है जो स्वर्ग में है। What are the things above and what are the things below? तो ये ऊपर की चीज और नीचे की चीज में अंतर क्या है? There are things of heaven and the things of earth. एक है स्वर्ग की चीजें, दूसरे है धरती की चीजें। When we are in the world, when we are before we came to Christ, we only sought the things of earth. प्रभु यीशु में आने के पहले हम बस धरती की चीजों के पीछे खोज करते थे। We were wanting to eat, drink, and have a good time in this world. बस खाना पीना और इस दुनिया में मौज मस्ती हमें करना था। And when we do not get all these things, we keep on fighting, quarreling, and being very bad ways. और जब हमें ये सब चीजें नहीं मिलते थे, उस समय हम लोग झगड़ा करते थे और बुरी तरीके से बर्ताव करते थे। That's why we lived in sin all the time. और उसकी वजह से हमेशा पाप में जीते थे। And that's why our lives are very unhappy. और इसलिए हमारे जीवन में बहुत दुख थी। But now we must seek after the things where heaven is, where Jesus Christ is going to live. लेकिन अभी से हमें स्वर्ग की चीजों की खोज करनी है, क्योंकि वहाँ पे प्रभु यीशु बसते हैं। Where we are people, we are citizens of heaven. हम लोग स्वर्ग के नागरिक हैं। We are citizens of India for a short time. हम लोग ये देश के नागरिक बस थोड़े समय के लिए ही We हैं। are members of our family for a short time. हम इस परिवार के सदस्य हैं, बस थोड़े समय के लिए होते हैं। We are members of our the employees in our workplace for a short time. हमारे ऑफिस में भी हम लोग बस थोड़े समय के लिए काम करने वाले हैं।
but we are citizens of heaven. लेकिन अंत में हम लोग स्वर्ग के नागरिक बनने वाले हैं, We belong to Jesus. क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु के हैं। We belong to a foreign land. हम लोग एक बाहरी देश के नागरिक हैं। The Bible says that we are translated from the kingdom of darkness to the kingdom of His dear Son. बाइबल में लिखा है कि हम लोग अंधकार के राज्य से निकलकर प्रभु यीशु के राज्य में आ चुके हैं। All of us were brought up in the kingdom of darkness. हम सभी अंधकार के राज्य में बड़े हुए थे एक समय पर। Right from childhood, nobody ever directly entered the kingdom of God. ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं इस दुनिया में जिसने सीधे प्रभु यीशु के राज्य में प्रवेश किया है। Everybody had to be converted and to be born again to enter the kingdom of God. हर एक व्यक्ति को नया जीवन पाना पड़ा था, कन्वर्ट होना पड़ा था ताकि वो प्रभु यीशु के राज्य में आए। Then we come under the control and the power of the Holy Spirit. उसके बाद ही हम लोग पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आते हैं। Before that, we are control of the evil spirit. उसके पहले हम लोग दुष्ट आत्मा के नियंत्रण में होते हैं। But now we have to seek, Lord Jesus, now I want to seek after what is pleasing to you. लेकिन अभी हमें बोलने कि प्रभु यीशु अभी से मुझे उन चीजों की खोज करना है जिससे आपको प्रशंसा मिलती है। God has given us a short time for us to live on the earth to prove that we love Him. प्रभु ने हमें बहुत ही कम समय दिया है इस दुनिया में जिसमें हम साबित कर सके कि हम उनसे प्रेम करते हैं। The Bible says we are pilgrims and strangers in this world. बाइबल में लिखा है कि हम लोग इस दुनिया में बस एक मुसाफिर हैं। Bible says that we are just passing through. We are just pilgrims. We are just passing here for a short time. हम लोग बस मुसाफिर हैं जो थोड़े समय के लिए इस दुनिया से गुजर रहे हैं। And this time we have to really seek after Jesus Christ and seek after His kingdom. और इस थोड़े समय में हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु और उनके राज्य का खोज करना है। And we have to seek what pleases the Lord. और उन चीजों की खोज करना है जिनसे प्रभु यीशु को प्रशंसा मिलती है। We have no interest in the things that of this world. हमें इस दुनिया की चीजों में कोई लगाव नहीं रखना है। All the things that are big and great in the eyes of men, the Bible says, are abomination in sight of Jesus. क्योंकि बाइबल बोलता है कि इस दुनिया में लोगों की नजर में जो कुछ भी ऊंची चीज है वो प्रभु के नजर में बहुत ही गंदी चीज है। What are the things the people in this world seek after? इस दुनिया में ऐसी कौन सी सारी चीजें हैं जिसके पीछे उसके लोग भागते हैं? Right from the poor people to the rich people. भले वो अमीर हो या गरीब हो। Jesus said, do not seek after what you shall eat and what you shall drink, प्रभु यीशु ने बोला कि तुम इसकी चिंता मत करो कि तुम कल क्या खाओगे या पियोगे, and what clothes you shall wear. या तुम क्या पहनोगे। But Bible says, Jesus said, that all these Gentiles, the people who do not know Christ, they only are thinking about all these things. क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला कि जो लोग प्रभु को नहीं जानते, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, वही लोग इन चीजों के पीछे भागते रहते हैं। But Jesus said to seek after the kingdom of God and His righteousness. लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि तुम मेरे राज्य को और मेरी धार्मिकता का खोज करो। What is the kingdom of God? प्रभु यीशु का राज्य का मतलब क्या है? The kingdom of God is the life of Jesus Christ. प्रभु यीशु का राज्य होता है प्रभु यीशु का राज्य होता है उनका जीवन। What are the things that are important in heaven? वो कौन सी सारी चीजें हैं जो स्वर्ग की नजरों में बहुत ही महत्वपूर्ण है? Those people have got character. वो लोग जिनके पास चरित्र हो। See, the things that are important in the world, wealth and all the other good property in this world. इस दुनिया में बस पैसा, धन संपत्ति यही बहुत ही मायने रखते हैं। If you got a lot of gold, you're very rich. अगर तुम्हारे पास बहुत सोना है तो तुम बहुत ही अमीर हो। America is the richest country in the world because they got a lot of gold. अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा सोना है। That is the rate of the dollar is very high. इसकी वजह से उनका जो पैसा है उसका भाव बहुत ज्यादा है मार्केट। But in heaven, the gold has got no value at all. लेकिन स्वर्ग में सोने का तो कुछ महत्वपूर्ण ही नहीं है। Because all the roads are made with gold. क्योंकि वहाँ पे तो सड़क सोने के होते हैं। Just see, like all of the tar that we make at home we see around the gold, the heaven, all the roads are paved with gold. जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे डामर डाल के रोड बनाते हैं, उसी तरीके से स्वर्ग में जो सड़क होता है वहाँ पे वो सोने से बनता है। And the walls are made with diamonds and pearls and every other rubies and all these things. और हीरे और जो कीमती पत्थर होते हैं उससे सब दीवारें बनते हैं। But here they very expensive. लेकिन यहाँ पे वो सारी बहुत ही कीमती होती है। But in heaven they are not at all expensive. लेकिन स्वर्ग में उनका कोई कीमत नहीं। Once I had got 2 prizes. एक बार मुझे 2 प्राइज मिला था। First I went for a medical conference. एक तो मैं एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में गया था। And there was some competition. वहाँ पे कुछ तो कंपटीशन चल रहा था। And I got a prize. वहाँ पे मुझे एक प्राइज मिला। And towards the end, that person said, "Give me a small thing," and they said, "It'll be very good for your wife." तो उन्होंने कोई एक चीज दी मुझे और उन्होंने बोला कि ये तुम्हारे पति के लिए बहुत अच्छा होगा। And the most foolish thing is I didn't open and see. और मैं भी बहुत ही मैंने फालतू चीज किया, मैंने तो खोल के देखा नहीं वो क्या है। And after I went home and the conference got over, I opened it. फिर एक बार कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया, मैं घर पे गया, फिर मैंने खोला। I opened it with a pearl necklace. और जब मैंने खोला उसके अंदर एक पर्ल का मोती का नेकलेस था। I had gone to Hyderabad and they gave a Hyderabadi pearl necklace. तो हैदराबाद का एक मोती का नेकलेस था वो। I said, "What do I do with it? My wife doesn't wear it. I also don't know what to do with it." मैंने सोचा मैं क्या करूँ इसका, मेरी पत्नी तो इसको नहीं पहनती तो मैं क्या करूँ इसका। The thing also had closed. I didn't know what to do. और ये कंपटीशन का भी वो बंद हो चुका था, पता नहीं चल रहा था क्या करूँ। Whom to give also I don't know. और किसको दूँ वो भी नहीं पता था। So then I just kept it there and brought it home and showed it to these people. This is the pearl necklace, how it looks like. फिर मैंने घर पे आके सबको दिखाया कि ये मोती का नेकलेस है, ऐसे कैसे दिखता है देखो।
After some time, there was another in the shopping center. There was another competition. I won a prize, थोड़े समय के बाद एक दूसरी जगह पे वापस एक कंपटीशन था, वहाँ पे मैंने और एक प्राइज जीता and that time I had got a voucher, और उससे भी मुझे एक वाउचर मिला and I was had to buy and almost bought to buy some things from that shop. और मुझे वो कोई दुकान से मैं उसके द्वारा कुछ खरीद सकता था। So I got a silver ring. तो वहाँ पे मुझे एक सिल्वर का रिंग मिला, अंगूठी मिला Like some few small stones, precious stones. और उसमें कुछ ऐसे कीमती पत्थर थे। That was worth 500 rupees. I got 500 rupees का voucher. तो 500 का वाउचर था, उसमें मुझे वो अंगूठी मिल गया। I told them that I don't want this ring. Please give me the money. मैंने उसको बोला कि मुझे अंगूठी नहीं चाहिए, तो मुझे पैसा दे दो। No, they said you have to take this one. तो उन्होंने बोला कि नहीं, पैसा नहीं मिलेगा, ये लेना पड़ेगा। Now I had this pearl necklace and the silver ring. तो मेरे पास अभी एक चांदी का अंगूठी था और एक मोती का नेकलेस था। I didn't know what to do with it. तो मुझे पता नहीं था मैं क्या करूँ। So then I said, I don't know what to do with it now. Then I saw passing Bandra, I saw some of these the jewelry shops. I said, we take old this jewelry. तो जब मैं एक बार बैंड्रा से गुजर रहा था, उस समय मैंने कुछ दुकानें देखे जहाँ पे वो लोग पुराने सोना चांदी के गहने लेते हैं। So I said, now better go and give it back to them, get some money out of it. मैंने सोचा कि कम से कम मैं जाके उनको दे दूँ और थोड़ा पैसा ले लूँ उनसे। So the first time I went in my life to a jewelry shop. तो पहली बार अपने जीवन में मैं एक गहनों की दुकान में गया। Everybody would have seen me, they would have wondered what I was doing in the jewelry shop. कोई और सोचता है कि ये विश्वासी उस दिन क्या कर रहा है वो गहनों की दुकान में। So I showed them the pearl necklace. तो उनको मैंने दिखाया वो नेकलेस। And they said, oh, this is a pearl necklace. You keep it here, and then we go back, we find if there are some buyers, then we'll give it. तो वो लोग मेरे को बोल रहे थे कि एक काम करो, तुम ये मोती का हार यहाँ पे रख दो, हम लोग जाके देख लेंगे कि खरीदने वाला कोई है कि नहीं। So I said, how much will you give? They said, we can't be sure. I don't think you'll get much and all. मैं बोला कि कितना मिलेगा, तो वो लोग बोल रहे थे पता नहीं कितना मिलेगा, मेरे हम लोग के हिसाब से ज्यादा नहीं I मिलेगा। had earlier found out the price. It was costing a little more than 1,000 rupees. फिर मैंने बाहर से उसका भाव मालूम किया और उसका कुछ तो भाव तकरीबन 1000 था। And I said, well, because I'm looking like a simpleton, they must be trying to fool me. तो मैं सोचता रहेगा, फिर मैंने सोचा कि वो लोग जानते रहेंगे कि मुझे इस चीज के में ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो वो लोग मुझे फिर उल्लू बनाते रहेंगे। And then I told them, look at this silver ring. फिर मैंने उनको बोला कि ये चांदी का अंगूठी भी देखो। Then they said, oh, we'll give you what 30 rupees for this. तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम आपको इसके लिए 30 रुपए दे देंगे। I said, this was really royally fooling me. मैं फिर सोचा ये तो मेरे को सच में येड़ा बना दे। So I said, okay, bye, I'll go to another shop. तो मैं दूसरा दुकान में आता हूँ। There also they said a similar thing. फिर वहाँ पे भी उन्होंने वही बोला, We are giving the silver only in rate. हम लोग बस उसका भार के हिसाब से I देते said, हैं। the branded things, the brand also is there and everything is there. Just see how much it is costing. तो मैंने बोला कि ये तो ब्रांडेड है, जरा ठीक से भाव बताओ मुझे इसका। Then I was looking at I looked at the puzzle face, I looked at them. तो मुझे कुछ पता नहीं था, मैं बस उनकी ओर देख रहा था। Then the other person was telling me, he told me, see, when you buy these things, they have got a lot of value. तो वहाँ पे और एक व्यक्ति था जो खड़ा था, उसने मुझे बोला कि जब तुम ये चीजें खरीदते हो इसका कीमत बहुत ज्यादा होता है, And when you go to resale, they almost have no value. लेकिन जब तुम इसे वापस बेचने जाते हो उसका कुछ कीमत नहीं होता। And I understood. फिर मुझे समझा। Then I just thought, what the Lord brought to my mind. See, these things have got no value at all. These things in the kingdom of God. फिर प्रभु ने मेरे मन में ये चीज लाया कि ये सारी जो चीज है प्रभु के राज्य में इसका कुछ भी कीमत नहीं। People run after it, fight over it, and all things, but these things are valueless in the kingdom of God. दुनिया में लोग उनके पीछे झगड़ते हैं, उनके पीछे भागते हैं, लेकिन प्रभु के राज्य में उसका कोई भी कीमत नहीं। What can a rich man take when he dies? जब एक अमीर आदमी मरता है, क्या अपने साथ वो लेके जा सकता है? He can never take. वो कुछ भी नहीं लेके जा सकता। Sometimes they put all these wonderful jewels in the coffin. कई बार लोग जब एक व्यक्ति मर जाता है तो उसे कब्र में उसके गहने भी डाल देते हैं, But the robbers come in the night and take it away. लेकिन रात में चोर आके उसको निकाल के लेके जाते हैं। And that's how so valueless the things of this world are. क्योंकि ये दुनिया की चीज का कोई कीमत ही नहीं है प्रभु के नजरों में। Because we live among people in this world, we also get these values that are there in this world. लेकिन हम लोग इस दुनिया में रहते हैं, दुनिया के लोगों के बीच रहते हैं, इसलिए हम लोग भी उनको कीमती समझ बैठते हैं। And God says, when you change your ideas, change your attitudes. इसलिए फिर प्रभु बोलता है कि तुम अपना सोच विचार को बदलो। Think of things that are valuable in the kingdom of God. उन चीजों के बारे में सोचो जो प्रभु के राज्य में कीमती है। That's why he said, keep seeking the things above. इसलिए प्रभु यीशु कहता है कि ऊपर की चीजों की खोज करते रहो। What are the things that are important above? तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ऊपर कीमती है? That is the nature of Christ. और वो है प्रभु यीशु का स्वभाव। Jesus said, if you have a meek and a quiet spirit, it is precious in the eyes of God. बाइबल में लिखा है कि अगर तुम्हारे पास एक शांति और नम्रता का आत्मा है तो प्रभु के नजर में वो बहुत ही कीमती है। If you have a quiet spirit and a peaceable spirit, God said, now God is able to work something in your life. एक शांति और नम्रता का अगर आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगा तो फिर प्रभु बोलेगा कि हाँ मैं तुम्हारे अंदर कार्य कर सकता हूँ। Because then that is the true riches in heaven. क्योंकि प्रभु के राज्य में यही सब सच्ची संपत्ति है।
Such people are the humblest people, are the people who are great in the kingdom of God. जो सबसे नम्र व्यक्ति होती हैं वही सबसे महान व्यक्ति रहेंगे प्रभु के राज्य में, Because God is also very humble. क्योंकि प्रभु स्वयं बहुत ही नम्र व्यक्ति है। Jesus was the humblest person who ever lived in this world. प्रभु यीशु सबसे नम्र व्यक्ति थे जो आज तक इस दुनिया में जिए। That's why God gave him the highest place in heaven. इसलिए भी परमेश्वर ने उनको सबसे ऊंचा स्थान दिया है स्वर्ग में। And all those who humble themselves, they will also be higher and higher in the kingdom इसलिए of जो God. कोई भी अपने आप को नम्र बनाते जाएगा इस दुनिया में, स्वर्ग में वो लोग उतने ऊंचे उठते जाएंगे। And the humble people, God will support. और जो नम्र लोग हैं प्रभु उनकी सपोर्ट, प्रभु उनका सहायता करेगा। God will give us everything. प्रभु उनको सब कुछ देगा, Not only in this world, but the world will come. सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं लेकिन आने वाली दुनिया में भी। We don't have to fight for our rights. हमें खुद के हकों के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, God will give it everything to us. प्रभु हर एक चीज हमें दे देगा। Bible says the meek shall inherit the earth. बाइबल में लिखा है कि जो नम्र व्यक्ति होते हैं वो लोग इस दुनिया पे राज करेंगे। Whatever you want, God will give it as an inheritance. जो कुछ भी तुम्हें चाहिए प्रभु तुम्हें एक विरासत के तौर पे तुम्हें दे देगा, Not only in this world, but the world to come. सिर्फ ये दुनिया में नहीं लेकिन आने वाली दुनिया में So भी। that's why we must always seek to humble ourselves, be as humble as possible. इसलिए हमेशा हमें कोशिश करना है कि हम लोग जितना हो सके उतना नम्र बने। Never quarrel and fight in any situation. कोई भी परिस्थिति में कभी झगड़ा नहीं करें। We are people who are very quarrelsome. हम लोग स्वभाव ही बहुत ही झगड़ेलू लोग होते हैं। Right from the beginning of our Christian life, God has to change our lives and to make us humble and meek in heart. तो हमारे मसीह जीवन की शुरुआत से प्रभु को हमें बदलना पड़ता है और हमारे मन में हमें नम्र बनाना पड़ता है। We go back to Colossians chapter 2, कोलोसी चैप्टर 2 में जाएंगे, chapter 3, sorry. चैप्टर 3 में जाएंगे, कोलोसी चैप्टर 3। Set your affections on things above, not on things that are on this earth. अपने लगाव को स्वर्ग की चीजों के ऊपर डालो, इस दुनिया की चीजों के ऊपर नहीं। When our affections are done, affections are the things that we like. हमारा लगाव वो चीज होते हैं जिससे हमें प्रेम होता है। When we like a certain thing, you become like that. जब हमें कोई चीज अच्छा लगता है हम उसके जैसे बन जाते हैं। If you like money, अगर हमें पैसा अच्छा लगता है you become very money-minded. तो हम लोग hमेशा पैसों के बारे में सोचने लग जाते हैं। You love a lot of pleasure. You love be lovers of pleasure. अगर हम लोग को मौज मस्ती बहुत पसंद है तो फिर हम लोग उसी से प्रेम करने वाले लोग बन जाते You हैं। love. Some people love food very much. कुछ लोगों को खाने से बहुत प्रेम है, They say I'm a foodie. वो लोग को हावराट बोलते हैं। Foodie means one who loves different types of nice food. तो ऐसा व्यक्ति जिसको अनेक तरीके का खाना अच्छा लगता है। So that nowadays there are a lot of foodies तो आजकल ऐसे बहुत लोग होते हैं because there are a lot of good food around available. क्योंकि हमारे आजू-बाजू बहुत ही अच्छा खाना You मिलता है। see, you open the TV, there is food program. अगर टीवी देखेंगे वहाँ पे भी खाने के ऊपर ही प्रोग्राम आता रहता है। Different type of tasty foods. अलग-अलग तरीके के एकदम स्वादिष्ट खाने मिलते As हैं everybody wants to get better and better types of foods. और हर एक व्यक्ति को और अच्छा खाना ही चाहिए रहता है We are a हमेशा, lover of good food. क्योंकि वो लोग अच्छे खाने के प्रेमी हैं। The Bible says you must be a lover of God. इसलिए बाइबल बोलते है कि तुम्हें प्रभु का प्रेमी बनना है। There is no problem in eating good food. अच्छा खाना खाने में कोई गलत चीज नहीं है। Jesus ate good food. प्रभु यीशु ने भी अच्छा खाना खाया था, But Jesus kept God first in his life. लेकिन प्रभु ने हमेशा परमेश्वर को अपने मन में पहला स्थान He दिया knew था। when to fast. वो उनको उपवास करने भी आता था, He knew when to eat good food. उनको अच्छा खाना भी आता था, So, but God was always first in his life. लेकिन फिर भी परमेश्वर हमेशा पहले स्थान पे थे उनके जीवन में। In fact, when he ate good food, the Pharisees used to accuse him of saying he is a glutton. कई बार जब प्रभु यीशु अच्छा खाना खाते थे तो जो फरीसिया थे उनको बोलते थे कि ये तो बहुत ही खाने के प्रेमी है And he keeps on drinking wine. और हमेशा शराब पीते रहते हैं, राक्षस। So, there are people who criticize us both this side and that side. तो दोनों तरफ से लोग हमें दोषी ठहराते रहते हैं, But when God sees where our heart is lying. लेकिन प्रभु जानता है कि हमारा मन कहाँ पर है। The Apostle Paul said, I can do with good things and I can do with bad things. अपोस्तल पौल ने बोला कि मैं अच्छी चीज भी कर सकता हूँ, गलत चीज भी कर सकता If God gives me abundance, I'm happy with it. हूँ। जब प्रभु मुझे बहुत सारी चीजें देता है मैं उसमें भी खुश हूँ, When there is need, I'm also happy with it. लेकिन जब मैं जरूरत में होता हूँ उस समय भी मैं खुश रहता हूँ, My dependence is on God. क्योंकि मैं प्रभु पे निर्भर हूँ। I must have Jesus with me all the time. हमेशा मेरे साथ प्रभु यीशु होने चाहिए। Other things are very small things. बाकी सब चीजें छोटी छोटी चीजें, They may come, they may go. वो आएंगे आ जाएंगे। As Job said, जैसे योग ने बोला, what God has given, God has taken away. जो प्रभु ने दिया है उसने वापस ले लिया। God has given us good health. प्रभु ने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है, Sometimes we have bad health. कभी हमारे पास हमारा स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं होता, God, good health may come, good health may go. तो स्वास्थ्य अच्छा आ भी सकता है, कभी कभी खराब भी हो सकता है। Health may come, health may go, but sin should always never be in our own तो life. अच्छा स्वास्थ्य रहे या ना रहे, लेकिन पाप कभी जीवन में नहीं होना चाहिए, Because sin can take us to hell. क्योंकि पाप हमें नरक की ओर ले जा सकता है। Sin can destroy us. पाप हमें हमारा नाश कर सकता है। If we fall sick, we will not go to hell. अगर हम लोग बीमार पड़े तो हम लोग नरक में नहीं जाएंगे। You know, people like Lazarus who was so sick right at the end point, and then he died. हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि कैसे लाजरस एकदम बीमार था और बीमारी की वजह से मर गया। The rich man died, he was very healthy. जो अमीर व्यक्ति था वो बहुत ही स्वास्थ्य
स्वस्थ रहता था He really enjoyed himself. और हमेशा आनंदित रहता था अपने जीवन में, But the thing was that he went to hell. लेकिन उसके बावजूद वो अंत में नरक में गया। This poor man, when he was sick, the Lazarus, he cried to God and asked God to help him. लेकिन ये लाजर व्यक्ति इतना गरीब व्यक्ति था, बीमार था, इसलिए प्रभु की ओर पुकार रहा था कि प्रभु तू मुझे चंगाई दे। Sometimes when God sends us to difficulties and trials, our focus becomes on God only. तो जब प्रभु हमें अनेक समस्या के द्वारा भेजता है तो हमारा जो ध्यान रहता है प्रभु की ओर जाता है। When we are lonely, हम लोग अकेले जब रहते हैं, nobody to talk to. कोई भी नहीं रहता आजू-बाजू बात करने के लिए। Who's there to talk to? Jesus. उस समय कौन रहता है बात करने के लिए? प्रभु यीशु। We must thank God for our lonely, precious moments. इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहिए प्रभु के लिए उन सारे क्षणों के लिए जहाँ पे हम अकेले होते हैं। Don't worry if you don't have any friends. तो इससे चिंता मत करो अगर तुम्हारे कोई खास दोस्त नहीं है। Don't worry if you don't have any relatives. चिंता मत करो अगर तुम्हारे पास कोई रिश्तेदार नहीं है तो, You have Jesus to talk to. क्योंकि प्रभु यीशु है तुम्हारे साथ। Some people say I've become very old. कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बहुत ही बूढ़ा हो गया हूँ, I've got nobody to talk to me. कोई भी नहीं है मेरे साथ बात करने के लिए, Nobody to take care of me. कोई भी नहीं है मेरा ध्यान रखने के लिए। But you know, God, if you're a child of God, God will always take care of you. लेकिन अगर तुम प्रभु के बच्चे हो तो प्रभु हमेशा तुम्हारा ख्याल The रखेगा। psalmist said, God will take care of his children right at the old age. भजन संगीता में लिखा है कि प्रभु यीशु अपने बच्चों का ख्याल रखता है उनके बुजुर्ग वो बूढ़े होने तक। Your father and mother may forsake you, your children may forsake you, but God will never forsake you. तुम्हारे बच्चे तुम्हारे माँ बाप तुम्हें दुत्कार देंगे लेकिन प्रभु तुम्हें कभी नहीं You दुत्कारेगा। can live in heaven. तुम स्वर्ग में जी सकते हो, Doesn't matter, nobody is there with you. I can always live in heaven. कोई बात नहीं अगर तुम्हारे साथ कोई भी नहीं हो तो तुम लेकिन स्वर्ग में जी सकते हो। There was an old lady in the in the Bible. Her name was Anna. नया करार में एक स्त्री थी, उनका नाम था ऐना। She married after 7 years. She lost her husband, उसके शादी के 7 साल बाद उसका पति गुजर गया। and then she didn't have no children. उसके पास कोई बच्चे भी नहीं थे, She didn't marry again. उसने वापस शादी नहीं की। But she lived in the temple, praising God and thanking God and praying to God. तो प्रभु के मंदिर में बस वो रहने लगी, वहाँ पे प्रभु की स्तुति करती थी और प्रभु की ओर प्रार्थना करती थी। So many years, maybe 60, 70 years. 60-70 साल उसने वही किया। When Jesus was born, she was the first. She was one of the few people to see Jesus Christ as a baby. तो जब प्रभु यीशु जन्मे थे और वो छोटे बच्चे थे उस समय वो बहुत ही उन कम व्यक्ति में से थी जिन्होंने प्रभु यीशु को देखा था। She was not like the other old ladies and widows who went on around gossiping here and there and all these things, but she just praised God and thanked God. God said, I will show this lady my son. वो ऐसे बाकी बुजुर्ग स्त्रियों की जैसे नहीं थी जो उधर उधर जाके गपशप करती थी, वो बस प्रभु की स्तुति करती थी, उनकी ओर प्रार्थना करती थी और इसलिए परमेश्वर ने उनको मौका दिया कि वो प्रभु यीशु को देख पाए। To be in the presence of the Lord is the greatest thing. प्रभु यीशु की उपस्थिति में रहना सबसे बढ़िया बात है। Jesus, the psalmist said, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after. भजन संगीता में बोला है कि एक चीज है जिसके पीछे मैं इच्छा करूंगा। Where the person, Psalm 27. भजन संगीता 27, भजन संगीता 27, Psalm 27. Yeah, verse 4. वाक्य 4। One thing have I asked from the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to meditate in His temple. For in the time of trouble, He will conceal me in His tabernacle, in the secret place of His tent He will hide me, He will lift me upon a rock. पढ़िए, 4 से एक और 7. मैंने यहोवा से मांगा, उसी के तन में लगा रहूंगा, मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रह पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगा रहो और उसके मंदिर में ध्यान किया करो, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छुपा रखेगा। This is what the testimony of David was. तो दाऊद का यही गवाही था। He said, Lord, I'd rather be in your temple and rather be in your presence and really worship you and praise you and thank you that I'm going to be with you in all heaven. One day we'll go to heaven, we'll see Jesus face to face. तो दाऊद ने उसमें बोला था कि परमेश्वर मेरे मन की इच्छा ये है कि मैं हमेशा आपके मंदिर में रहूं, आपके घर में रहूं, स्वर्ग में भी आपके साथ रहूं और आपकी आराधना और आपकी स्तुति करते रहूं। If you don't spend quiet time with the Lord now, how will you see the Lord's face? अगर Will you not be so familiar with Him? अगर प्रभु के साथ हम लोग यहाँ पे समय नहीं बिताएंगे तो कैसे हम लोग अनंत काल के लिए प्रभु के साथ समय बिताएंगे और उसका सामना करेंगे। All godly men spend a lot of time दुनिया में जितने भी धार्मिक व्यक्ति रहे सभी ने प्रभु के साथ बहुत ही समय बिताया था, आपसी समय बिताया था। We will think of Abel and Enoch and Noah and all these. They spent a lot of quiet time and speaking to God. तो एबेल था, नोआ, एनोक, ये सारे व्यक्ति लोग प्रभु के साथ बहुत समय बिताते थे अकेले में। They became friends with the Lord. और इसके वजह से लोग प्रभु के दोस्त बन गए। All of us sitting here can be friends with the Lord. तो हम सभी के यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब प्रभु के दोस्त बन सकते हैं। Personally, individual friendship. एक आपसी दोस्ती हम बना सकते हैं। Very close friendship. बहुत ही निकट वाली दोस्ती बना सकते हैं। And then we become close friends with the Lord, we get all His nature. तो जैसे हम लोग प्रभु के दोस्त बनते जाएंगे उतना ही उनका स्वभाव हमारे अंदर आते जाएगा। He tells us how to behave in every situation. वो हमें
बोलते जाता है कि कैसे हर एक परिस्थिति में बर्ताव करना है। How to deal with this person, how to deal with that person. We can tell everything to our friend. ये दोस्त के साथ, ये व्यक्ति के साथ कैसे बर्ताव करना है, ये हमें प्रभु बताएगा। You know, friends are so good. दोस्त कितने अच्छे होते हैं। We can tell our best secrets not only to our father and mother or to our brother and sister, but to our close friends. We tell our everything. कितने सारी राज की बातें हम कई बार हमारे माता पिताओं को नहीं बोलते, लेकिन हमारे एकदम निकट वाले दोस्तों को बोलते हैं। We can tell all the frustrations of our heart हमारा जितना भी मन में जो भी गुस्सा है वो भी बोल सकते हैं, because they can understand us क्योंकि वो हमें समझते हैं and they'll give a little good counsel. और फिर हमें थोड़ा बहुत लोग सलाह दे सकते हैं And we feel nice in their presence. और उनकी उपस्थिति में हमें अच्छा लगता है। And Jesus is our good friend. तो प्रभु यीशु हमारा अच्छा दोस्त है। The Lord said, always come to me. प्रभु यीशु ने इसलिए बोला कि तुम हमेशा मेरे पास आओ। I want to have a personal relationship with you. मैं तुम्हारे साथ एक आपसी रिश्ता बनाना चाहता हूँ। I want to have walk with you. I want to have fellowship with you. I want to talk to you. मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, संगति करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। And then in your workplace, in your kitchen, and wherever in the church, everywhere I want to have fellowship with you. तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे किचन में, तुम्हारे सब जगह पे मैं तुमसे संगति करना चाहता And हूँ। that's as the Lord said, we must, and then we love the things that God loves. और फिर हम लोग भी सीखेंगे वही चीजों से प्रेम करना जो प्रभु, जिनसे प्रभु प्रेम करता है। And then also, if you are friends with the Lord, we love the things what the Lord loves. तो जब हम लोग प्रभु के दोस्त बन जाएंगे तब उन्हीं चीजों से प्रेम करेंगे जिनसे प्रभु भी प्रेम करता है। There's a proverb which in the English says, birds of a feather flock together. नीति वचन में लिखा है कि एक तरह के प्राणी हमेशा साथ में रहते हैं। All the cricketers will come together. सारे क्रिकेटर साथ में रहेंगे। All the footballers come together. सब फुटबॉल खेलने वाले एक साथ रहेंगे। All the computer enthusiasts comes together. सब कंप्यूटर के चाहने वाले एक साथ रहेंगे। All the doctors come सब together. डॉक्टर साथ में रहेंगे। But all the people who love God come together. उसी तरीके से जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं वो लोग हमेशा साथ में रहेंगे। We love the people of God. क्यों हम लोग दूसरे प्रभु के बंदों से प्रेम We love करेंगे। the fellowship. हमको अच्छा लगेगा उनके साथ संगति करने के लिए। We are people of another kingdom. हम लोग एक दूसरे राज्य के लोग हैं। We are people that there are so many political parties who have different agenda. ये हम लोग देखते हैं कि कितने सारे राजनीति के दल हैं जिनके पास अलग-अलग राजनीति करने का तरीका होता है उनका। They all gather together in their different groups. और वो लोग अलग-अलग सभा में इकट्ठा हो जाते हैं। And those who love the Lord will come together. तो उसी तरीके से जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं वो लोग एक सभा बना के साथ में आ जाएंगे। They will speak to each other. वो लोग एक दूसरे से बात करेंगे, They will encourage one another. एक दूसरे को प्रोत्साहन देंगे, Because we are all people of eternity. क्योंकि हम लोग सभी अनंत काल के लोग हैं। We are not going to be here just only for 20-30 years. हम लोग बस यहाँ पे 20-30 साल के लिए नहीं मिलने वाले। We are going to be for crores of years. हम लोग अनंत काल कोटि-कोटि वर्षों के लिए साथ में मिलने We वाले don't know about all our relatives and our friends. हम लोग ये नहीं जानते कि हम लोग अपने रिश्तेदारों को या दोस्तों को इतने साल मिलेंगे कि नहीं। But all of us who are sitting here are of eternal value and citizens of heaven. लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सभी स्वर्ग के नागरिक हैं। That's why we encourage each one of us to grow more and more like Jesus Christ. इसलिए लोग प्रोत्साहन देते हैं एक दूसरे को हमेशा प्रभु में और बढ़ने के लिए। Our value should increase in heaven. हमारा कीमत प्रभु यीशु की नजरों में उनके राज्य में बढ़ते रहना That's चाहिए। why we have to come to encourage one another. इसलिए हमेशा हमें आना है एक दूसरे को प्रोत्साहन देने के लिए। And when our lives are focused to one another, we want to become more like Jesus. और जैसे हमारा उस तरीके से हमारा लक्ष्य हमेशा बनाया रहेगा और हम लोग प्रभु यीशु की और बनते जाएंगे। And Colossians chapter 3 it says again. कोलोसी चैप्टर 3 में फिर आगे बोलते हैं, लिखा है कोलोसी चैप्टर 3 Verse 5. वाक्य 5। Therefore consider the members of your earthly body as dead to immorality, impurity, passion, evil desire and greed, which amounts to idolatry. For his account of these things that the wrath of God will come. In them you also walked when you were living in them, but now put away all these things: anger, wrath, malice, slander, abuse of speech from your mouth. Do not lie to one another, since you have laid aside the old self with its evil practices. 5 to 9. 5 से 9 पढ़े। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्ध, दुष्टकाम, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराई में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गाली बकना ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यों को उसके कामों से उतार डाला है। So the Apostle Paul tells us we are members of our earthly body, all that we do with our body. They should be dead to all these type of sins. तो अपोस्तल पौलुस भी बोलता है कि जितने भी हमारे शरीर के अंग है वो पाप की ओर मरे होने चाहिए। See, as believers we can do all sorts of sins. बिलीवर होने के नाते हम लोग बिलीवर होने के बावजूद हम कितने सारे पाप कर सकते You हैं। know how many temptations we are going through, each one of us. हम सभी अभी जानते हैं कि कितने सारे अनेक लुभावनों से हम जूझते हैं We रोज। can get angry, we can lose our temper, हमें मन करता है कितने बार हम लोग गुस्से में आ जाए, we can have bad thoughts, कितने सारे गलत सोच विचार आते हैं। we can live immoral lives. Why? Because instead of yielding their will to God, they are yielding their wills to their own desires and flesh. क्योंकि वो लोग अपना जो जीवन है प्रभु की ओर वो लोग नहीं समर्पित कर रहे हैं, लेकिन अपने पाप की जो इच्छा है उसकी ओर समर्पित कर रहे हैं। And then there says also greed. और यहाँ पे लिखा है लालच के बारे में।
Greed amounts to idolatry. लालच leads to, Greed means idolatry. तो यहाँ पे लालच का मतलब क्या होता है? मूर्ति पूजा। Greed, any greed for anything means you are an idol. अगर That becomes before God. अगर तुम्हारे जीवन में कोई भी चीज के ऊपर लालच है तो तुम्हारे लिए वो एक मूर्ति बन चुका है तुम्हारे जीवन में। See, God hates idolatry. प्रभु यीशु मूर्ति पूजा से नफरत करते हैं। That's why anything that comes before God always becomes an idol. इसलिए अगर कोई भी चीज प्रभु के सामने आ जाती है या हमारे और प्रभु के बीच में आ जाती है तो वो एक मूर्ति बन जाती है। God says, I should be first always in your life. परमेश्वर बोलते हैं कि हमेशा तुम्हारे जीवन का पहला स्थान मुझे मिलना चाहिए। He says, I'll give you second place. लेकिन हम लोग बोलते हैं कि नहीं, हम आपको दूसरा स्थान देंगे। But God says, no, I am the high and holy one. I always want first place in your life. तो परमेश्वर बोलते हैं कि नहीं, मैं जीवित परमेश्वर हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन का पहला स्थान मुझे मिले। So God always wants the first place. तो परमेश्वर हमेशा पहला स्थान पाना चाहता है, Because He is God. क्योंकि वो परमेश्वर है। When we keep money or job before God, अगर हम लोग हमारा पैसा या हमारा काम को प्रभु के ऊपर रखते हैं, or our children or our wife before God, या हमारे बच्चे या हमारे पत्नी को प्रभु के ऊपर रखते हैं, then becomes an idol. तो वो एक मूर्ति बन जाता है। That's why God always tests us. इसलिए परमेश्वर कई बार हमें जांचता है। He tested Abraham. उसने इब्राहिम को भी जांचा। He said, do you love your son which I gave you after 20, 30 years? Do you love him more than me? उसने बोला इब्राहिम को कि क्या तुम अपने बेटे को मुझसे ज्यादा प्रेम करते हो? Sacrifice him. उसको बलिदान कर दो। बलिदान दो। Abraham said, yes. इब्राहिम ने बोला हाँ। Lord, you've given it me, but you are so good, much more meaningful to me than anybody in this world. उसने बोला कि प्रभु तूने मुझे ये बेटा दिया है और तू ही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है इस दुनिया में, तो मैं अपने बेटे को तेरे और बलिदान देता। Jesus should be our darling and dear more than anybody, any human being in this world. प्रभु यीशु हमारे लिए सबसे खास, सबसे निकट व्यक्ति होना चाहिए हमारे जीवन में। There was a godly man called C.T. Studd who was a cricketer who went to Africa. C.T. स्टड करके बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे जो एक समय पर क्रिकेटर थे, लेकिन बाद में वो सब छोड़कर वो अफ्रीका में गए। His name was Charles. उनका नाम चार्ल्स था। And he told his wife Priscilla when he was getting married, उन्होंने अपनी पत्नी को बोला था, जिनका नाम प्रिसिला था, शादी के समय पर, you must love Jesus more than Charlie. कि तुम्हें मुझसे ज्यादा प्रभु यीशु से प्रेम करना है। His name was short name of Charlie. Jesus should be more important to you than Charlie. क्योंकि प्रभु यीशु तुम्हारे लिए और कीमती और महत्वपूर्ण होना चाहिए मेरे तुलना में। Then your love towards me will be good. तभी तुम मेरे और भी और अच्छे से प्यार कर सकोगे। If you love our wife and our children more than me, Jesus said, you are not worthy of me. प्रभु यीशु ने बोला कि अगर तुम अपने पति या पत्नी से मुझसे ज्यादा प्रेम करते हो तो तुम मेरे योग्य नहीं। Monday when we go to heaven, we have to see Jesus face to face. Each one of us. एक दिन जब हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, उसी दिन हम लोग प्रभु यीशु को आमने सामने देखेंगे। And then we have to say, Lord Jesus, I live for you. उस समय हम लोग ये बोलना चाहिए कि प्रभु यीशु मैंने आपके लिए जिया। If we keep anybody or anything or a job or profession or ministry before the Lord, then we'll confront a lot of problems. अगर हम लोग कोई भी चीज को, भले हमारा काम हो या हमारा सेवा हो, प्रभु के ऊपर रखेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। Then we'll enter a lot of sin. और कई सारे पाप में भी हम लोग गिरेंगे। That's why we get angry and get irritated and so many things. और इसकी वजह से हम लोग बहुत आसानी से गुस्से में आ जाते हैं या भड़क जाते हैं। There was a sister once who said her husband came to after the marriage. एक बार एक बहन बोल रही थी कि एक दिन उनका पति आया था And what happened, naturally broke the crockery set which her mother and father had given her. तो जो लड़की थी उसके माँ बाप ने जो उसको खाने का सेट दिया था वो उसके पति ने तोड़ दिया। So she got very upset. तो वो बहुत गुस्से में आ गई। So here my darling mother and father had given these sets to me, and then here my husband has most carelessly gone and broken. तो वो बोल रही थी कि मेरे माता पिता ने इतने प्यार से मुझे तोहफा दिया था और तुम एकदम जाके तुमने तोड़ दिया उसको। What is important, the relationship with the husband or all his careless this crockery? तो इस समय क्या ज्यादा कीमती है, उसके पति के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखना कि वो प्लेट का सेट। So many of the fights and the quarrels that we have in our homes are all the petty earthly things. तो कितने सारे जो घर में झगड़े होते हैं यही सब चिंदी चीजों के ऊपर होते रहते हैं। Somebody insulted me. किसने मेरा अपमान किया? Somebody didn't talk to me properly. किसने मेरे से ठीक से बात नहीं किया? Somebody did this to me. किसने ये किया? Oh, we get so upset about so many things. और ये सब चीजों के ऊपर हम लोग एकदम गुस्से में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। We don't get upset about things that we are hurting God. लेकिन हम लोग ये इसके ऊपर दुखी नहीं होते कि हम लोग प्रभु को निराश कर रहे हैं। If there's sin in our own life, we must get upset. अगर हमारे जीवन में पाप है तो हमें निराश होना है। And that's why we must really see that sin does not come into our lives at all. इसलिए हमें हमेशा ख्याल रखना है कि पाप हमारे जीवन में नहीं है। Holy Spirit has come to make us holy. पवित्र आत्मा आए हमें पवित्र बनाने के लिए। When we sin, the Bible says in verse 6, the wrath of God comes upon us. वाक्य 6 में लिखा है कि जब हम लोग पाप में पड़ते हैं तो प्रभु का जो दंड है हमारे ऊपर आ जाता है। When we behave in disobedient way, the wrath of God comes upon us. जब हम लोग आज्ञाकारी नहीं बनते तो प्रभु का दंड हमारे ऊपर आ जाता है। God has taken us out from the hell because we were sinners. प्रभु ने हमें नरक
से इसलिए बाहर लाया है, प्रभु ने हमें नरक से बाहर लाया है, इसके बावजूद कि हम लोग पापी थे। That's why you always, whenever we do some sin, immediately come to God. Lord, have mercy on me, forgive me, Lord, cleanse me by your precious blood. इसलिए जब कभी भी हम लोग पाप में अगर गिर जाते हैं, तुरंत हमें प्रभु के सामने आकर बोलना कि प्रभु तू मुझे माफ कर, अपने लहू से मुझे साफ कर। If we don't confess our sin, where will we go? We'll go to hell. अगर हम लोग अपने पाप को नहीं कबूलेंगे तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे? नरक में जाएंगे। Even after becoming believers, if we don't confess our sin and ask God to forgive us, where will we go? We'll go to hell. God will not forgive us. विश्वासी होने के बावजूद अगर हम लोग हमारे पापों को नहीं कबूलते रहेंगे तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे? हम लोग नरक में जाएंगे। One sin can take us to hell. एक पाप हमें नरक में लेके जा सकता है। That's why it's, Lord, I want to keep my slate clean every day. इसलिए प्रभु मुझे हमेशा हमारा हिसाब पूरा साफ रखना है। Perfect. We have to be perfect. हमें एकदम सिद्ध रहना है। How can we be perfect? कैसे हम लोग सिद्ध बन सकते हैं? Only by the blood of Jesus Christ. सिर्फ प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। Every day we require the blood of Jesus हर Christ. रोज हमें प्रभु यीशु के लहू की जरूरत है। God has been tremendously merciful to me and to each one of us. प्रभु यीशु ने हमारी तरफ बहुत ज्यादा करुणा दिखाया है। As God has been tremendously merciful to us, God, you be merciful to other people. तो जैसे प्रभु ने तुम्हारी ओर करुणा दिखाया है, तुम भी दूसरों की ओर करुणा दिखाओ। You have sinned so many times over and over again the same things. तुमने कितने बार एक ही पाप प्रभु के खिलाफ दोहराया है And you are finding difficult to forgive other people. और इसके बावजूद तुम दूसरों को माफ नहीं कर सकते। Forgive them. माफ करो And then our lives will be happy and joyful. We will be prepared to meet the Lord. और फिर तुम्हारे जीवन में खुशी रहेगा और तुम प्रभु को मिलने के लिए तैयार हो। So whenever we see things like anger, wrath and anything coming to our lives, we will say, put it away. तो जब कभी भी हमारे जीवन में गुस्सा आता है, हमें तुरंत उसे दूर करना है। The Bible is written, the letter is written to Colossians. तो ये जो पत्र है कोलोसियों के कलीसिया के लिए लिखा था। Colossians believers. कोलोसियों के विश्वासियों के लिए। So it is quite possible, it's possible that all these things can come into our own lives. ये संभव है कि ये सारे जो पाप है हमारे जीवन में भी आ सकते हैं। Where it says, wrath, anger, slander, abusive speech. दंड, गुस्सा, गालियाँ भी। Amazing. Can you see that God says these things will come into the life of believers? क्या आश्चर्य की बात है कि प्रभु बोल रहे हैं कि ये सारे पाप एक विश्वासी के जीवन में भी आ सकता है। The Lord says, I know your weakness. I'm going to help you to become like Jesus. प्रभु बोलते हैं कि मैं तुम्हारी निर्बलता को जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूँगा कि तुम प्रभु यीशु से बन सको। I'll fill you with the Holy Spirit. मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से भर दूंगा। Keep your affections on things of Jesus Christ. तुम्हारा लगाव प्रभु यीशु की चीजों के ऊपर रखो। Then all these things you just throw it away, drop it out. और ये सारे जो पाप है वो निकलते जाएंगे। And God will give you the grace and God will give you the strength. और फिर प्रभु तुम्हें ताकत और अनुग्रह देते जाएगा। The Holy Spirit is God's grace is going to be upon you. प्रभु यीशु का जो अनुग्रह है हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेगा। What is God's grace? God's help. प्रभु का अनुग्रह मतलब क्या होता है? उनका मदद। All those who cry to God for help, God will help them. जो कभी प्रभु की ओर पुकारते हैं मदद के लिए, प्रभु उनकी मदद करता है। The Bible says we must come boldly to the throne of grace. बाइबल में लिखा है कि हमें हिम्मत के साथ प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन की ओर जाना है, That we may receive mercy from God. ताकि हमें प्रभु की ओर से करुणा मिले। God will forgive us. प्रभु हमें माफ करेगा And then we'll also get grace from the throne, grace from Him. और वहीं से हमें अनुग्रह भी मिलेगा। So grace means God's help. अनुग्रह मतलब प्रभु की मदद। God is willing to help us. प्रभु तैयार है हमें मदद करने के लिए। Sometimes we don't go to God. We say, Lord, I don't know, I'm useless. God, you cannot help me. कई बार हम लोग प्रभु के पास नहीं जाते, बोलते कि प्रभु मैं कोई काम का नहीं हूँ, तो आप कुछ नहीं कर सकते मेरे द्वारा। Most people in this world don't go to God for help. कई लोग प्रभु के पास नहीं जाते इस दुनिया में मदद के लिए। So Lord, please help me. तो जाओ जाके बोलो कि प्रभु मेरी मदद कर। All the people who go to God for help, God will help them. जो कोई प्रभु के पास जाता है मदद के लिए, प्रभु उनकी मदद करता है। Confess your sin, ask God, please help me, Lord, God help them. अपने पाप को कबूलो और बोलो कि प्रभु मुझे मदद करो, तो प्रभु मेरी मदद करेगा। Such people get victory in their life. और ऐसे लोगों को अपने जीवन में विजय मिलता है। Such people live in fellowship with the Lord. और ऐसे लोग प्रभु के साथ संगति में जीते हैं। Proud people never go to cast help. घमंडी लोग कभी भी जाके मदद नहीं मांगते। See, I'm proud. If I got a lot of money, I say, why should I go and ask help for my अगर मैं बहुत ही life? घमंडी हूँ, बहुत ही अमीर हूँ, तो मैं सोचूंगा मैं किससे क्या जाके क्यों मदद करूँ? I'll try to help myself. मैं खुद ही की मदद कर लूँ। I'll help myself. मैं खुद की मदद कर लूँ। I'll not ask help from other people. मैं और किससे मदद नहीं मांगूँ। God has to break us so much that we come down to our knees. इसलिए प्रभु को हमें बहुत तोड़ना पड़ता है ताकि हम लोग अपने घुटने पे आ जाएं। God knows how much pride is there in each one of us. क्योंकि प्रभु जानता है कि हम लोग हर एक व्यक्ति के अंदर कितना घमंड है। Oh my Lord, I said, Lord, I cannot do anything without you. Please help me. तो इसलिए मुझे बोलना है कि प्रभु यीशु मैं आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी मदद कर। Help me have victory over my anger, over my sexual immoral thoughts, and all these things, Lord, you can save me completely. मदद कर मुझे काबू पाने के लिए मेरे गलत सोच विचार के ऊपर, मेरे गुस्से के ऊपर, तू ही बस मेरी मदद कर सकता है। And then we can give all grace and glory, and all glory can go to God in our life. तब जाके हम लोग सारी महिमा प्रभु की ओर ही दे सकते हैं। God is the one who is faithful. He has called us, प्रभु श्रद्धालु है जिसने हमें बुलाया है, and He also may bring it to pass. और जो उसने कार्य शुरू किया है वो खत्म भी करेगा। Let us always love the Lord. The Lord is too good. तो प्रभु बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। He's too kind.
बहुत ज्यादा अच्छा है। You just do whatever your mistakes you have done, you just come to Him as you are. भले तुम जो कुछ भी गलती करो तुम उसके पास आ जाओ जैसे तुम हो। Even if you have sinned 1,000 times, this worst sin. भले तुमने एक ही पाप सबसे गलत पाप 1000 बार किया, If you have done 1,000 murders, अगर तुमने 1000 खून किए God will still take you to heaven and God will still help you if you try to. प्रभु तुम्हें फिर भी स्वर्ग में लेके जा सकता है, तुम्हारी मदद कर सकता है अगर तुम उसको पुकारोगे तो। That's why God, Jesus is the kindest person that you can ever imagine. इसलिए प्रभु यीशु सबसे दयालु व्यक्ति है इस दुनिया The में। kindness of God leads us to repentance. प्रभु यीशु का जो अच्छाई है हमें पश्चाताप की ओर लेके जाता है। It's not the strictness of God. God is too good to us, too kind to us. प्रभु यीशु की शक्ति नहीं लेकिन उनकी जो अच्छाई है हमें पश्चाताप की ओर लेके जा सकता That's why we can be encouraged. है और इसके लिए हम लोग प्रोत्साहन पा सकते हैं। And let's come to Him and love Him with all our hearts. कभी उनके पास आना है और उनसे प्रेम करना है पूरे मन से।